टेल मी बेस्ट लेसन जो आपने जेफ बेजोस से सीखा. So I've had the opportunity to meet him only a couple of times. Okay. And he is obviously now in a role which is not direct day to day with Amazon that much. But what I've learned through reading what he writes, and by the way, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जो शेयर होल्डर लेटर्स पहले जेफ लिखते थे अब एंडी लिखते हैं, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव, दे आर एजुकेशनल इन many ways. As an observer of those writings and as someone who has had the opportunity to meet him those couple of times and observe the way he makes decisions, my biggest lesson is वो बहुत ही अच्छे सिंप्लीफायर थे. मतलब वो एक कमाल के इंटेलिजेंट आदमी तो है ही, मतलब दैट इज अ गिवन, मतलब द इंटेलिजेंस इज अ गिवन, पर द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई बेसिक and provide a very firm direction in which to proceed. Leader का role of discerning signal from noise and focusing on the signal. That was, I think, is his biggest ability. Identify the vital few things that you have to focus on to make a difference. From the way I visualize this, right? I'm a very visual person. So the way I visualize this from my shipping days, आपने कभी एक शिप का दरवाजा देखा है? उसमें काफी लीवर्स होते हैं. तो अगर आपने वो सारे लीवर ओपन पोजीशन में नहीं डाले तो दरवाजा खुलता नहीं है. एक लीडर का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करना कि वो लीवर्स कहाँ हैं, बिकॉज मैं किन चीज़ों को पुल करूं जिससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा. उसके लिए ये गलत धारणा है कि वो एक इंटेलिजेंस से या विजडम से आ जाता है. उसके लिए आप में एक शार्प इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, बट एबिलिटी टू ऑपरेट एट ऑल लेवल्स की ज़रूरत है. आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में भी सोच सकें और ज़रूरत पड़ने पे यू कैन रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट इनटू द वीड्स ऑन द डेटा to get clarity ki what is the needle moving initiative. And he had that. His ability to context switch, and he has that. I don't know why I said had. He has that. That his ability to context switch and simplify it, focus on the signal and identify those vital few levers is phenomenal. And that to me was my biggest lesson. That clarity and as a leader, or as anyone, but certainly as a leader, my role is to provide that clarity on what are the vital few things to focus on. One of the things that he used to say for himself, and I think he's written it in one of his shareholder letters, is I feel my role and that of my senior leadership team is to make a few decisions right. So I measure my work based on the number of right decisions I make. So in the sense that he was saying more in terms of the fact कि मैं 10 बजे आता हूँ, 5 बजे तक मतलब I start binding down because my ability to make those decisions reduces, and I feel my job is not to deliver a volume of work but make a few high impact decisions and make them right. True. And then later on at one more conference where he was saying something like this, he said, he added one thing, ki, and if as a leader मेरा job है decision लेना, then मेरा job है अच्छे से सोना. He said कि अगर मैं अच्छे से सोऊंगा नहीं तो मैं अच्छे decision नहीं ले पाऊंगा. And in my entire life of building Amazon, I've compromised on sleep, which is the wrong thing to do. Yeah. And where he said कि अगर किसी भी लीडर या सीईओ को डिसीजन लेना है तो you need to sleep better. I completely agree. I think by the way, sleep better and find the right balance between your work and your life at home. Your work, find the right balance in your life, because, or harmony is the way I would put it. That find the right harmony in your life, because you are a part of, like, you're composed of everything about you, right? Your family,
children or your parents and your friends and your work. If you have balance and harmony at home, you're just going to be a better leader at work and vice versa. So yeah, sleep, focus on family, prioritize them. I feel all of those are important. जब कस्टमर ऑर्डर करता है इधर घर पे बैठे बैठे मैंने दबा दिया बाय नाउ, अब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप इस ऑर्डर से फाइनल डिलीवरी तक क्या होता है, लाइक ऑर्डर टू वेयर हाउस टू डिलीवरी, व्हाट इज द प्रोसेस? बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है एंड फैसिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरप्ले ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है. जब आप वो बाय नाउ दबाते हैं ना, तो बिटवीन द टाइम दैट आपने वो बाय नाउ दबाया और वो चेकआउट स्क्रीन पे वो स्क्रीन चेंज हुई, रियल टाइम कॉल्स आर मेड कि ये सामान कहाँ है, आप कहाँ हो, एंड व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट इट टू यू, एंड फाइंड द क्लोजेस्ट बिल्डिंग, बिकॉज फास्टेस्ट क्लोजेस्ट इज ऑल्सो लोअर कॉस्ट, एंड इट्स बेटर टू गेट इट फ्रॉम द क्लोजेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम अ स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक रियल टाइम कॉल वहाँ पे हुई एंड बिटवीन सिर्फ कुछ सेकंड्स में जब तक मेरा वो रहा है टेक्नोलॉजी ने यू जस्ट मेड दिस ग्राफ. करेक्ट. ओके. एंड जब आप स्क्रीन पे गए उस पर आप वो देखते हो कि इस डेट को मिलेगा, चूज करो, ये स्लॉट चूज करो या वो स्लॉट चूज करो. आजकल तो हम 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेम डे डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको सेम डे में भी स्लॉट्स मिलते हैं कि आपको दो वर्किंग आवर्स में चाहिए, बिजनेस आवर्स में चाहिए, पर्सनल आवर्स में चाहिए. नहीं, बिजनेस पर्सनल एक है. आप दिन के 2-2 घंटे के स्लॉट में चूज कर सकते हो. मेरे को 11 से 1 में चाहिए, मेरे को 1 से 3 में चाहिए, और ऐसे 10 लाख प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो. तो वो सब रियल टाइम हुआ. जो वो सिस्टम है उसको हम इंटरनली बोलते हैं प्रॉमिस. हम उसको डिलीवरी एस्टिमेट नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस. उसका क्या मतलब है कि वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए, वो जो प्रॉमिस हमने किया है, कि हम उसे मीट कर पाएँ. और जब हम मेजर करते हैं अपने आप को बाद में, हम ये बोलते हैं हमने कितनी बार प्रॉमिस मीट किया, कितनी बार नहीं किया. और बहुत हाई परसेंटेज है वो, मतलब इट्स लाइक क्लोज टू 6 सिग्मा कि हम इतनी बार प्रॉमिस मीट करते हैं. तो क्योंकि हम उसे प्रॉमिस कहते हैं, इसलिए दैट कैलकुलेशन हैज़ टू बी सो एक्यूरेट कि वो इन्वेंट्री एग्जैक्टली किस बिल्डिंग में है, आप कहाँ हो, उसका जो राउट है वो क्या है, अभी ट्रांजिट टाइम क्या चल रहा है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. उस हिसाब से यू कैलकुलेट दैट प्रॉमिस एंड गिव इट टू द कस्टमर. नाइस. कस्टमर ने अब चूज कर लिया कि मेरे को ये प्रॉमिस चाहिए. अब बेसिस द कस्टमर्स प्रॉमिस सिलेक्शन, फिर उस फुलफिलमेंट सेंटर या उस बिल्डिंग में वो ऑर्डर, हम कहते हैं ऑर्डर ड्रॉप, बट बेसिकली उस बिल्डिंग में जाके वो ऑर्डर असाइन हो जाता है. ठीक है. उस बिल्डिंग में रियल टाइम लोग पिक कर रहे हैं, मतलब पिकिंग चल रही है. तो आप जैसे पहले दिन आए, आप या आप एसोसिएट हैं, आप पिक कर रहे हैं, आपके पास एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, आपकी जो लोकेशन है वेयर हाउस में उसको मैप करके जो सबसे पास इन्वेंट्री है वो आपको एलोकेट हो जाएगी. आपको नहीं पता कि आप राज का ऑर्डर पिक कर रहे हैं या आप अभिनव का ऑर्डर पिक कर रहे हैं, आपको वो असाइन हो गया. आपको बस एक XYZ22LM जो भी उस नंबर का ऑर्डर कर, वो असाइन हो गया. और जो क्लोजेस्ट उधर उस लेन में होगा उसको हो जाएगा. करेक्ट. और उसके बाद अगर आपने जैसे 2 चीज़ें ऑर्डर की, आपने ये क्योरा भी ऑर्डर किया और आपने इसके साथ ये कॉफ़ी का मग भी ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें उसी पिकर को मिलेंगी. एक आपको मिल सकती है, एक मेरे को मिल सकती है. वो बाद में टाई अप हो जाएंगी सिस्टम में जाके, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है. तो फिर उसके बाद वो वहाँ से जब पिकिंग हो गई, आपने वहाँ पे शेल्फ से उठाया, आपने उसको 6 साइड से चेक किया कि ये सब सही है कि नहीं, आइटम मैच हो रहा है, कलर मैच हो रहा है, उसका कोई डैमेज तो नहीं है, उसके बॉक्स में डैमेज तो नहीं है. एंड फिर आपने उसको एक कन्वेयर पे डाल दिया टू सेंड टू, हम जिसे बोलते हैं पैक स्टेशन. पैक स्टेशन के ऊपर एक उसको स्कैन करते हैं वहाँ पे जो भी एसोसिएट है, लेडी है, जेंट है, एंड फिर एक रियल टाइम कॉल होता है कि टू डिटर्मिन व्हाट इज द राइट बॉक्स साइज. तो हमारे पास कई बॉक्स टाइप्स हैं और हमारे पास मिलियंस ऑफ, हम उन्हें एसिन बोलते हैं बट SKU समझ लीजिए, मिलियंस ऑफ SKUs हैं. उस SKU के लिए बेस्ट बॉक्स साइज क्या है, देयर इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. वो कैसे डिटर्मिन होता है, जब सामान FC में आता है तो उसका एक 3 डायमेंशनल स्कैन होता है, उसमें उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट सब रिकॉर्ड होता है. फिर
वो अगर एक एफसी में हो गया, जैसे अगर इंडिया में बॉम्बे में हो गया, तो पूरे वर्ल्ड के एफसीज में अपडेट हो जाता है कि इस वाले प्रोडक्ट के लिए ये डायमेंशन है। फिर उसके बाद जब वो पैक स्टेशन पे जाता है, उस पैक स्टेशन पे क्या पैकेज प्रोफाइल है, उसके हिसाब से बेस्ट पैकेज प्रोफाइल रिकमेंड होता है कि ये इस पैकेट में डालिए, ये पतले वाले हैं, मोटे वाले में, इस साइज वाले एग्जैक्टली, 3 प्लाई 5 प्लाई, ये बॉक्स में जाएगा कि अब ये बड़े बॉक्स में जाएगा कि ये पेपर बैग में जाएगा। फिर उसके बाद ये जाता है एक स्टेशन, बोलते हैं हम उसे स्लैम, विच इज बेसिकली शिप लेबल एंड मैनिफेस्ट। उस टाइम पे एक और, हाँ स्लैम, उस पे जो आपके लेबल लगता है ना, जो उसमें आपका नाम लिखा होता है और एड्रेस होता है, तो लेबल के टाइम पे एक और रियल टाइम कॉल होता है कि हमने वो प्रॉमिस दिया था, अभी भी वो वैलिड है कि नहीं। ये हो सकता है कि आपने जब प्रॉमिस दिया और अब के बीच में कुछ चेंज हो गया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में, तो अगर तब सोचा था कि ट्रक से पहुंच जाएगा, पर अब कुछ गड़बड़ हो गई है या नीचे कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तो अब इसको एयर पे अपग्रेड करना चाहिए, तो वो उस टाइम हो जाता है। तो एक और रियल टाइम कॉल होता है ये लेबल लगाने से पहले कि जो हमने सोचा था वही करना है कि और कुछ करना है। फिर उसके बाद वो लेबल लगता है, लेबल के ऊपर वो पाथ होता है कि कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। फिर डिपेंडिंग ऑन दैट पाथ, वो या तो ट्रक से जाता है या प्लेन से जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हम इंडियन रेलवे से जाते हैं। हम पहली ई कॉमर्स कंपनी थी 2019 में जब हमने पार्टनर किया उनके साथ। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज एन इंडियन एंड ऑल्सो फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। जब उनके साथ अब पार्सल कैरेज में हम 120 ट्रेनों पे हैं, हमने एक ट्रेन से शुरू किया था। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मोड बेस्ट है, उससे जाता है। वहाँ से वो एक सॉर्ट सेंटर जाता है। कैन वी पॉज हियर लिटिल बिट कि वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट, अब ये 2 अलग अलग आए थे, एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ये 2 अलग लोगों ने, कोई वेयरहाउस के एक्स कोने पे होगा, कोई एक्स कोने पे होगा, उन्होंने डाल दिया। ये दोनों मिक्स कहाँ हुए? तो बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द सेंटर, वहाँ पे मैंने देखा था वो येलो कलर का एक ऐसा ट्रे जैसा कुछ होता है जिसमें वो अपना प्रोडक्ट डालते हैं, करेक्ट, उसमें डालते हैं, फिर वो स्कैन करते हैं और आगे भेज देते हैं। एंड देन जहाँ पे पैक हो रहा होता है बॉक्स में, वो उस येलो वाले में से उठा के पैक कर देता है। करेक्ट। तो उसको कैसे पता कि कौन सा ही बॉक्स में किसका डालूंगा? तो जिस टोट में ऐसे आइटम हैं जो 2 आइटम सेम ऑर्डर के हैं, राइट, या उसी कस्टमर ने 2 अलग अलग ऑर्डर विद इन अ सर्टेन टाइम विंडो ऑर्डर किए हैं, वो टोट की राउटिंग अलग होती है। वो एक अलग जगह जाता है। तो जैसे मैंने आपका कप पिक किया, आपने आपकी केटल पिक की, और वो हम दोनों की जो टोट्स हैं वो एक अलग जगह गई। वहाँ पे जाके उसे हम एक रीबिन कहते हैं प्रोसेस। तो एक जैसा आपका पीछे बुक शेल्फ है, ऐसे ही वहाँ पे जाके ये एक शेल्फ में केटल रखी होगी और एक शेल्फ में कप रखा होगा। तो जब मैं केटल को स्कैन करूंगा तो बताया जाएगा कि एक कप भी है इसके साथ। ओके। तो ये जाके मैचिंग होती है पैक स्टेशन पे। तो वहां पे जाके ये मैचिंग होती है। तो इस बुक शेल्फ से फिर वापस एक नए टोट में जाएगा जो पैकिंग स्टेशन पे पहुंचता है? नहीं, पैकिंग स्टेशन पे ही बुक शेल्फ होता है। अच्छा। तो आपने यहाँ से दोनों टोट का सामान निकाल के बुक शेल्फ में लगा दिया। अब मैंने ये या तो केटल स्कैन की या कप स्कैन किया, दोनों में से एक भी स्कैन किया, तो मेरे को पता चल गया दूसरा आइटम भी है, उसको लगाओ और दोनों को एक ही बॉक्स में डालो और उसके बाद भेज दो। गॉट इट। देन कमिंग बैक टू, हाँ, तो वहां से ये एक बार स्लैम चूज हो गया। फिर आपने एक जगह, एक लॉजिस्टिक्स में एक चीज कहते हैं सॉर्ट सेंटर। सॉर्ट सेंटर, थिंक ऑफ इट एज अ, जैसे एयर इंडिया का दिल्ली का हब है या ISBT है बस का। बेसिकली ये कंसोलिडेशन पॉइंट्स होते हैं कि आपको अगर न्यूयॉर्क जाना है तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से होगी, तो बैंगलोर के लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो फ्लाइट में चढ़ के न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। ठीक है। तो शॉर्ट सेंटर वैसी जगह होती है कि बड़े ट्रक सामान लाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे शॉर्ट सेंटर हैं, ये तावड़ू में भी है हमारा एक शॉर्ट सेंटर, हमारा एक शॉर्ट सेंटर सोनीपत में भी है। तो वहाँ बड़े ट्रक से सामान आएगा, फिर वहाँ से छोटे ट्रक से डिलीवरी स्टेशन में जाएगा, या तो फ्लाइट में जाएगा या बाइक्स पे आके हमारे पास आ जाएगा, या अलग अलग जगह। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद डिलीवरी स्टेशन जाएगा। डिलीवरी स्टेशन से हमारे काफ़ी, उसे हम चैनल्स कहते हैं। तो हमारे 4 मेन चैनल हैं, उनमें से एक जो है वो हमने, बहुत ही यूनिक चैनल है जो हमने अब 10 से ज़्यादा साल हो गए, उसे हम कहते हैं आई हैव स्पेस। इसमें क्या है कि आपके जो नेबरहुड किराना शॉप्स हैं
उनमें सुबह लोग आते हैं सामान खरीदने, शाम को आते हैं सामान खरीदने, दिन का काफ़ी टाइम होता है जो उनके पास फ्री होता है, और उनके पास उस एरिया का लोकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है. इनफैक्ट वो ऑलरेडी डिलीवरीज भी करते हैं, उनको फ़ोन पे ऑर्डर मिलते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिलते हैं. तो उस आफ्टरनून के टाइम पे वो हमारे पैकेजेस डिलीवर करते हैं. ऐसे 28,000 स्टोर्स हैं हमारे साथ, किराना स्टोर. हाँ, किराना स्टोर जो पूरे इंडिया में है. एंड फॉर यू जो कस्टमर है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा कि वो जो डिलीवरी हुई है वो किराना स्टोर से हुई है या वो डिलीवरी डीएस से हुई है, बिकॉज उनको सेम ट्रेनिंग मिलती है, उनकी अलग एप्लीकेशन है, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मिलती है. तो फॉर यू ऑन द डोर स्टेप द एक्सपीरियंस इज सीमलेस. नाइस. बट वी वर्क विद द किराना स्टोर. तो एक वो चैनल है. उसमें द नेक्स्ट चैनल इज what you call the DSP channel, which is basically a delivery service provider. जो small entrepreneurs हैं, micro businesses हैं, ये these don't have to be from the logistics domain. They can be from any domain. In fact, हमारे पास veterans हैं, हमारे पास war widows हैं, हमारे पास people with disabilities हैं जो deliveries कर रहे हैं, and they bring delivery drivers with them, and then उनको package allocate होते हैं. हमारा तीसरा चैनल है जिसे हम कहते हैं एमफ्लेक्स, विच इज बेसिकली वर्क ऑन डिमांड, इन विच केस दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ. जी, Amazon Flex. तो उसमें दे कम एंड डू पार्ट टाइम डिलीवरीज फॉर अस. एंड फाइनली हमारा एक और चैनल है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड DSP, विच इज बेसिकली आप एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर हैं पर आप स्टेशन भी चलाना चाहते हैं, तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम आपको प्रोसेसेस बताएंगे, हम आपको गवर्नेंस मैकेनिज्म बताएंगे, एंड वो फिर डिलीवरी स्टेशन से लेके डिलीवरी तक आप ही करेंगे. तो ये जो नेटवर्क है पूरा, इट इज़ एट एवरी लेवल एन एग्रीगेशन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ independent contractors. So like it's a massive network of small and medium businesses. Wow. So that's the whole journey of a package from buy to doorstep. And ये जैसे किराना स्टोर का चैनल है, ये यूएस में भी है कि सिर्फ इंडिया में होता है? इंडिया से शुरू हुआ था. हाँ. एंड फिर उसके बाद हमने इसको जापान में लॉन्च किया, फिर यूरोप में लॉन्च किया, फिर यूएस में लॉन्च किया. सो द आइडिया जो सीड है वो, और जो टेक्नोलॉजी बेस बना था वो पूरा इंडिया में बना था. Wow. एंड उसके बाद ये आइडिया, बिकॉज इतना पावरफुल आइडिया है, ये पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुआ. अभी यूएस में बहुत अच्छा कर रहा है, तो अब हर जगह है, बट शुरू इंडिया से हुआ था. फ्रंट लाइन पे जो इंफॉर्मेशन है ना, वो प्रोडक्ट मैनेजर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स में नहीं है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर, एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि, एंड कल एक्चुअली आई सेड दिस एट द स्टेशन when I was addressing everyone, at the end of the visit you address people. So आपने वो पिक्चर देखी है स्पेशल 26? उसमें एक डायलॉग है कि असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे. एंड मैंने उनको बोला कि असली काम तो आप लोग कर रहे हैं. And I truly believe that the real value is added by people who are picking, packing, shipping, delivering. Rest everyone is a overhead, a very important overhead. I mean, the business won't run without them, but the real value addition वो होता है ग्राउंड पे. एंड इसका एक वर्ड है जैसे हम यूज करते हैं अमेजोन में, और वैसे है जापानीज वर्ड, लीन का कॉन्सेप्ट है, गेम्बा बोलते हैं. गेम्बा क्या होता है? गेम्बा, तो गेम्बा का इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं. ओके. गेम्बा का ये जो जापानीज वर्ड है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन है टू ऑब्जर्व द प्लेस वेयर वैल्यू इज क्रिएटेड. तो आप जाके वहाँ देखिए, और वहाँ पे आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्जर्व करिए. अगर आप जैसे, एक बार मैं एक फुलफिलमेंट सेंटर में गया था और वहाँ पे देख रहा था पैक स्टेशन के ऊपर एक लेडी काम कर रही थी, एंड एक दो पैकेजेस जब उसने पैक किए, इनवॉइस तीसरे पैकेज में फंस गई. ओके. फिर उसने प्रिंटर खोला, उसने रोल को कुछ एडजस्ट किया, रोल बंद किया, चल. फिर मैंने पूछा उससे, आप ये कितनी बार होता है दिन में? तो उन्होंने कहा कि ये दिन में 2 से 3 बार होता है. तो नाउ आपको ये पता चल गया कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कह रहे हैं सारे प्रिंटर ठीक काम कर रहे हैं, उनमें मेंटेनेंस सही हो रही है, पर
आपने जब ऑब्जर्व किया, आपने देखा अच्छा दिन में 3 बार अगर ये प्रिंटर स्टक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर उससे हम एक थिंग करते हैं करेक्शन ऑफ एरर कि 5 वाई करते हैं हम कि ऐसा क्यों हुआ, जो फिर देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, सो यू आस्क 5 वाइज टू गेट टू द फाइनल रूट कॉज, so that root cause analysis जी, so then you can solve the root cause. So Gemba, or going where the value is getting added, is really important in any operations. So I really value that time. And for me, it's about talking to associates, seeing what's happening on the floor, observing, delivering packages, understanding कि वो जो पैकेज डिलीवरी के टाइम पे क्या इशू आते हैं डिलीवरी एसोसिएट को, कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है, हाउ आर कस्टमर्स रिएक्टिंग. So yeah, I mean, I really enjoy that time. What we are really proud of, and especially like me personally, having been part of this journey for the last so many years, has been the fact that a lot of what we've invented here has been adopted globally. ये इंडिया में इन्वेंट होके then now जी, made in India.